आज के समारोह के चीफ गेस्ट, respected Honorable Home Minister, Union Home Minister and Corporate Minister Amit Bhai Shah ji, our respected Chief Minister of Gujarat Bhupendra Bhai Patel ji, Rishikesh Bhai Patel ji, Honorable Cabinet Minister, Balwant Singh Rajput ji, Honorable Cabinet Minister, Harsh Bhai, Honorable Home Minister of Gujarat, Pankaj Bhai Patel, Parimal Bhai Navnani, my President Boman Irani and Shekhar Patel, and all dear friends, my fellow members, ladies and gentlemen. As I stand before you today, I am filled with the mixed emotion, pride and gratitude. As I complete my 2-year tenure as a chairman of CREDAI National, I am honored to have had an opportunity to serve this esteemed organization. I must say, it's been an incredible journey and I am thrilled to have shared it with my energetic President Boman Irani. Together, we have achieved numerous milestones, brought new energy to the real estate sector and made significant progress in promoting sustainable and responsible development practices. However, I am also aware that there is still much work to be done, and I firmly believe that we can achieve our goals only by working together as a team. As we gather here today for the change of guard ceremony, and I am delighted to welcome my new team led by dynamic Shekhar Patel as President. Shekhar Patel, I must say, it's a fantastic personality, full of knowledge, connect, and grip on the real estate subject. His energy is infectious and his friendly nature make him a joy to work with. As we pass on the baton with pride, we welcome Shekhar Patel side by side. May his leadership be guided by insight and make CREDAI soar the new heights. As I pass on the baton, I want to assure you that I am not going to go anywhere. I am not retiring. I will continue to work timelessly for CREDAI, for the real estate sector and for our nation development. Viksit Bharat is a mission that is very close to my heart and I am committed to doing my part of making it a reality. Since 2014, a series of game-changing reforms by the central government have laid the foundation for structured, transparent and scalable growth. Some key policy milestone includes RERA for accountability and transparency, PMY for urban and rural, aiming the housing for all, affordable housing incentives and interest subsidies, REIT, Swamit Fund, opening the new financing avenues, National Infrastructure Pipeline and PM Gati Shakti Mission, redefining the connectivity and urbanization. Digital India, ease of doing business policies and Make in India mission have collectively enabled smoother project execution and investor confidence. India's real estate sector is today among the top 5 globally in terms of the value and volume. We have contributed significantly in the national GDP and provide employment to millions of people directly or indirectly. More than 3 crore homes have already been sanctioned under the various housing schemes. The focus has shifted to green building, smart cities and infrastructure-led growth, which CREDAI continue to active support. Yet, a long way to go. अभी 3-4 दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके द्वारा भी जो 3 मेजर चीज़ों के ऊपर फोकस हमारे को बताया गया और हमारा को कहा गया कि इसके अंदर जो है CREDAI को और काम करना चाहिए, स्किलिंग एंड मेक इन इंडिया एंड रेरा. स्किलिंग इज़ डेफिनेटली जो है नीडेड ऑफ द आवर. स्किलिंग में CREDAI ऑलरेडी एक बहुत बड़े मिशन के ऊपर काम कर रहा है और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया कि गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो स्किलिंग के लिए आ रही है, तो CREDAI और गवर्नमेंट की पॉलिसी को मिला के एक स्किल्ड मैन फोर्स जो चाहिए इंडिया के लिए, उन्होंने एक अपना अनुभव भी शेयर किया. जब वो क्रिकेट स्टेडियम यहाँ गुजरात का बन रहा था तो कोई स्पेशल बेंडिंग चाहिए थी, उसके लिए 6 महीने लोगों को ट्रेन करना पड़ा, उसके बाद वो काम हुआ क्योंकि वो मैन फोर्स, वो स्किल्ड पावर अवेलेबल नहीं थी.
तो क्रेडाई ये कोशिश करेगी कि आने वाले टाइम में जितने भी यहाँ पे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसके अंदर जो स्किल्ड मैन पावर रिक्वायर्ड है रियल एस्टेट के लिए, वो क्रेडाई और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके उस कमी को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड मैन फोर्स को जो है तैयार किया जा सके। मेक इन इंडिया एक ऐसा सब्जेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर का जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट रियल एस्टेट में पड़ता है, स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में हम मोर देन 90-95% चीज़ें जो है मेक इन इंडिया की ही यूज़ करते हैं। मोर देन 250 आइटम्स जो हम रेजिडेंशियल हाउसिंग के अंदर यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के अंदर ही बनी होती है। स्टिल जो थोड़ी बहुत चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, हम कोशिश करेंगे अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलके कि वो भी इंडियन बने और इस सेक्टर को 100% मेक इन इंडिया बनाया जा सके, जिससे कि देश की और जीडीपी और ग्रोथ में इस मेक इन इंडिया को रियल एस्टेट के थ्रू आगे बढ़ाया जा सके। फाइनली द रेरा आने से एक बहुत बड़ा बदलाव, जो मेरे सारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं जो जानते हैं कि 2016 से पहले रियल एस्टेट के ऊपर एक क्रेडिबिलिटी और एक विश्वास का जो एक प्रश्न चिन्ह लग गया था, वो रेरा आने से उसमें काफ़ी बदलाव आया है। रियल एस्टेट को देखने का जो नज़रिया है वो आम लोगों के लिए बदला है, उनका एक विश्वास लौटा है कि हाँ एक कोई एजेंसी है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से अगर कोई आदमी आज मकान खरीदता है तो उसको एक विश्वास होता है कि भाई मेरा मकान ठीक है, सारे अप्रूवल्स ठीक हैं। सिमिलरली हमारे को भी काफ़ी डिसिप्लिन उससे आया है और जो लोग नाइट बाय फ्लायर्स थे, जिन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उनके लिए भी एक लगाम लगी कि हाँ एक सर्टेन बैरियर है रेरा आने से कि रियल एस्टेट के अंदर आपको जो है आप एंटर कर सकते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट डेटा भी जो है, हम डेटा के ऊपर भी इस बार काफ़ी काम करेंगे कि देखने को मिला कि 2016 के बाद जितने प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च हुए हैं उसके अंदर आप देखेंगे बहुत ही कम, हार्डली नील के बराबर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो समय से पूरे नहीं हो पा रहे हैं या जिनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इस क्रेडिबिलिटी और इस कॉन्फिडेंस के लिए ही मैं लास्ट में अपनी बात को समाप्त करते हुए मेरे फादर की लिखी हुई 4 लाइनें जो मैं पहले भी कई बार सुना चुका हूँ, लेकिन ऑनरेबल सीएम सर आज यहाँ पर हैं तो उनके सामने एक बार दोबारा से कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि सर, पत्थरों की काट से जो शोर होता है समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट पत्थर रेत में भी जान होता है। हम किसी के स्वप्न को आकार देते हैं, है पुजारी प्रेम के तो प्यार देते हैं। है अजब दुनिया ये व्यापारी समझती है, हम मगर सबको दरो दीवार देते हैं। थैंक यू सर।